Who's going to answer this question? Would you mind answering the question? No, not you. The next to you? Yes, the one in spectacles? Yes, I'm talking about you. Yeah, you. The one who answers all the questions in my class? That's it. So sorry, I forgot your name. Could you please tell me your name first? You're Aditya. Hi guys, has it ever happened to you, despite of having taught for 2 to 3 years, your teacher still doesn't remember your name? Do you get offended? Yes, we do. At times we do. So once again, I welcome you to Dr. Abha Chemistry Pathshala, and I'm here to talk about certain names. What is the importance of the names? Like, we feel so connected if someone calls us by our name, right? Similarly, there is a connect with the subject if we are very, very thorough with the names of the compound. Yes, you got me right. I'm going to talk about IUPAC nomenclature and the common names of the carbonyl. Carbonyl compounds are aldehydes and ketones. Yeah, and in this video, we will be talking about all the possible IUPAC and the common names of carbonyl. So जल्दी से आप अपना एक पेंसिल और नोटबुक लेके तैयार हो जाइए. आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस का जो लेक्चर है ऑन ईथर, अल्कोहल्स एंड बेसिक IUPAC वो आपने करा होगा. सो अगर नहीं करा है तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप वो क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद आप इस क्लास में आते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी मोर मीनिंगफुल. इस क्लास में हम कवर करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं IUPAC के और कॉमन नेम्स. आपको बता दें बच्चे, कॉमन नेम्स की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है. ऑल्दो बच्चों को कॉमन नेम्स करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, होनी नहीं चाहिए. कॉमन नेम्स के भी रूल होते हैं. ऑल्दो इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज एज इज IUPAC. आपने देखा होगा अल्कोहल फिनॉल की क्लास में, ईथर्स की क्लास में किस तरह से IUPAC आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट कॉमन नेम्स में भी अपने रूल्स हैं. तो अल्डिहाइड के कॉमन नेम्स काफ़ी ईजी हैं एंड कीटोन के कॉमन नेम्स में कई बार चैलेंज आता है. ठीक है, सो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स के साथ एक बार फिर से कार्बोनिल की क्लास में आप सबका स्वागत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास, राइट? तो स्क्रीन पे चलते हैं. So let us quickly start with IUPAC and common names of aldehydes and ketones, right? Some aldehydes and ketones. So first one we'll start with RCHO. RCHO is the general formula of an aldehyde, right? Of an aliphatic aldehyde. Now let me just tell you, aliphatic aldehyde will have both. Aliphatic will have open as well as cyclic. So I have for the open one, RCHO is the formula and the rule is going to be alkanal. Alk matlab world root, an is for the single bond. In case there is an additional double bond or triple bond, we will change the name to ene or ine. Al is the suffix for aldehyde. Al is the suffix for aldehyde. For example, let me give you an example. Ethanol. Ethanol. Eth is the world root, ane is the single bond, al is the suffix name for aldehyde, right? Okay, so this is a very interesting rule for the common names. Now please focus on the common name. Common name of aldehyde. For the common names of aldehyde, you all need to know the common name of acid. Okay, guys, let me just remind you, acid common name has got a lot of relevance. Whether it is aldehyde or it is nitrile or it is any of the acid derivatives, all the names are derived from the common name of acid. So what I have done is, I have just written, see, अगर आपके पास, see guys, if you have one carbon का aldehyde, HCHO, so what will be the name? Formaldehyde. And from where are you deriving this name? You are deriving this name from formic acid. फॉर्मिक में से एक हट जा रहा है और अल्डिहाइड लग जा रहा है. ये देखिए मैंने ऊपर लगाया हुआ है, एक हट जा रहा है और अल्डिहाइड लग जा रहा है. तो मैंने जो HCHO है, एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन का जिसे आप इथेनॉल कहते हो विल बी एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन इज प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड. एंड इफ यू वांट इट्स
IUPAC it is going to be propanal. बहुत क्लोज हैं, but they are different. Propanal, and this is propionaldehyde, 3 carbon. Butyraldehyde is from butyric acid. Valeraldehyde is from 5 कार्बन का aldehyde. Capraldehyde from 6 कार्बन का aldehyde. इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है. ये जो कॉमन नेम्स है ना, लेट मी जस्ट टेल यू, इनका जो ओरिजिन है एसिड के कॉमन नेम्स का, वो किसी न किसी चीज से, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका एंट स्टिंग से बना हुआ है. एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड विनेगर से बना हुआ है. ब्यूट्रिक बटर से बना हुआ है. कैप्रल गोट के फैट से बना हुआ है. तो इन सब नाम की काफ़ी रेलेवेंस है. ठीक है, मैं एक यहाँ पर लगाती हूँ थोड़ा सा ओरिजिन, आप इसको ज़रा देखिएगा. दिस वॉज सपोज टू बी माई इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आप इसको देख सकते हैं. यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. या जस्ट गो थ्रू इट. Okay, now if the common names are clear, let's move on to the next one. ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड. एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे कॉमन मैंने लिया बेंजीन रिंग के साथ CHO लगा दिया. ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ मैंने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया. यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड. आपको फिर से बता दें, बेंजल्डिहाइड इज एक्चुअली द हिस्टोरिकल नेम. हिस्टोरिकल नेम है, लेकिन बेंजीन के कंपाउंड्स में हिस्टोरिकल नेम्स को फुल फ्लेजेडली आप बड़ी आराम से IUPAC की तरह यूज़ कर सकते हैं. जो IUPAC है बेटा वही कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड का. आगे आ जाइए. अब हमने लिया साइक्लो कंपाउंड. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं क्लियर है, वैसे तो बहुत क्लियर है अपने आप में, यहाँ पर CHO लगा हुआ है. अब यहाँ पर बेंजीन रिंग की जगह साइक्लो कंपाउंड है. तो रूल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कार्बल, देखो एल्केन कार्बल्डिहाइड तो आपने बेंजीन कार्बल्डिहाइड वाला ही है. हलो साइक्लो, सॉरी ये हलो नहीं है बच्चे, ये साइक्लो अल्केन कार्बल्डिहाइड. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केन, यानी कि साइक्लो एल्केन इससे आएगा, यहां पर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन. यहां पे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, राइट, कार्बल्डिहाइड. ओके, आगे चलते हैं. IUPAC सेम है. कीटोन पे आते हैं. कीटोन का बड़ा सिंपल है. एल्डिहाइड इज एल्केनल, कीटोन इज एल्केनॉन. एल्क क्या होगा, वर्ड रूट होगा, एन बॉन्ड्स बताएंगे, ओन आपका सफिक्स होगा कीटोन के लिए. इसमें 2 तरह के कीटोन होते हैं. आप 4th नंबर में देखिए, RCOR को सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं. और जब सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो जो आपका कॉमन नेम होगा वो होगा डाई एल्किल कीटोन, सिमेट्रिकल के लिए. अनसिमेट्रिकल के लिए एक एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल का लेते हैं, CH3CO C2H5. इसमें क्या है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्किल कीटोन. लेकिन अल्किल को कैसे बोलना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो C2H5 के लिए आप क्या डालेंगे, इथाइल. CH3 के लिए मिथाइल कीटोन. तो यहां पर रूल लगाया हुआ है, रूल को फॉलो करिए, एल्किल कीटोन. तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन. या फिर अगर दोनों सेम है तो डाई एल्किल कीटोन. जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है प्रोपेनॉन का, CH3CO इससे छोटा कीटोन 2 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता, 1 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता. सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होगा, तो प्रोपेनॉन. इसको आप चाहो तो प्रोपेन 2-on भी लिख सकते हो, बट प्रोपेनॉन भी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट एंड करेक्ट है. डाईमिथाइल कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, CH3 3H3 है, तो डाईमिथाइल कीटोन. और इसका एक और नाम होगा, कमर्शियल नेम होता है एसीटोन. ठीक है, नेक्स्ट आइए, साइक्लो डेरिवेटिव साइक्लोहेक्सेनोन. आपने एल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड लगाया, लेकिन यहां पे कुछ नहीं लगाना पड़ा, आपने सिंपल साइक्लो डेरिवेटिव में साइक्लोहेक्सेनोन में आपने सीधा साइक्लोहेक्सेन के साथ ओन लगा दिया, जबकि आपने अल्डिहाइड में शब्द कार्बल्डिहाइड का यूज किया. देखिए इसके पीछे एक रीजन है. अगर आप स्ट्रक्चर देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन हमने साइक्लोहेक्सेन का यूज किया है. लेकिन यही जब मैं अल्डिहाइड लिखती हूं, मुझे एक एडिशनल कार्बन डालना पड़ता है. कार्बन डालना पड़ता है. तो इसका नाम मैं क्या लिख देती हूं, इसको मैं बोलती हूं कार्बल्डिहाइड.
ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, और अपना कॉमन नेम बहुत इजी है, एल्किल कीटोन, तो साइक्लो एल्किल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लाइटली डिफरेंट, एरोमेटिक कीटोन होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ जो कीटोन होंगे, अब हम उनका नाम करते हैं। ये सिस्टम होगा ही होगा, और आपको मैं बता दूं गाइस, अगर ये सिस्टम होता है तो एक शब्द फिनोन, अगर ये सिस्टम होता है तो वर्ड फिनोन आता ही आता है। ठीक है, अगर आप नीचे वाले तरीके से नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, नीचे वाला तरीका बेटा आयुपेक भी है और कॉमन नेम भी है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल नाम माना जाता है, तो इसमें हमेशा जब भी C6H5CO होगा तो शब्द फिनोन आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं गाइस, ऊपर को नहीं, पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं। इसका एक रूल होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल होता है, अगर आपने रूल समझ लिया तो आप बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। देखिए, यहां तो मैंने आपको बता दिया फिनोन है शब्द, ठीक है, ये तो शब्द फिनोन है, और बेंजीन के बाहर जितने भी कार्बन एटम है, सपोज यहां पे कितने हैं, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड होगा एसिटिक एसिड। इफ यू लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि एसिड के कॉमन नेम्स की जबरदस्त रेलेवेंस है, तो ये एसिटिक एसिड होगा 2 कार्बन का, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, तो ये नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। तो अब आप रूल को फिर से देखिए, अब आप ध्यान से रूल को देखिए। रूल क्या कहता है, रूल कहता है, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट बिकॉज अदरवाइज आपका फोकस हटेगा। रूल कहता है, ध्यान से, एसिटो प्रोपियो ब्यूट्रो, यानी कि ये क्या है वर्ड है बेटा, ये है 2 कार्बन का एसिड जो होता है एसिटिक, उससे एसिटो बना, प्रोपियोनिक उससे प्रोपियो बना, ब्यूट्रिक उससे ब्यूट्रो बना, वैलेरिक उससे वैलेरो बनेगा, अगर आप आगे जाना चाहो। ठीक है, और अगर बेंजोइक एसिड है, अगर बेंजीन रिंग का एसिड है तो बेंजो बनेगा। ये किसके साथ लग जाएंगे, फिनोन के साथ लग जाएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, राइट। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, मैं वापस दूसरे नाम पे आती हूँ, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ COCH3 लगा हुआ है, तो मैंने आपको कहा था जब ये पार्ट रहेगा तो आप शब्द क्या डालोगे, ये छोटा सर्कल बना है, ऑटो करेक्ट हो गया, अपॉलॉजीज, 1 मिनट फिर से देखते हैं। जब ये पार्ट रहेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, वर्ड फिनोन होगा ही होगा, तो वर्ड फिनोन होगा ही होगा, राइट। और दूसरा जो इसमें ऐड करना है वो देखिए, बेंजीन रिंग के बाहर कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन का एसिड होता है एसिटिक, तो एक हटके ओ लग जाएगा एसिटोफिनोन, ऊपर देखिए एसिटोफिनोन। ठीक है, और ये नाम बड़ा इजी है, एक फिनाइल रिंग है। ठीक है, देखिए इसको मैं इरेज करके एक बार आपको क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, एक मिथाइल है, तो मिथाइल फिनाइल किस में रखा है, ये आपने करा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, बेंजीन डेरिवेटिव्स का एक और नाम है, ऊपर आ जाइए रूल के पास, फिनाइल एल्केनोन। फिनाइल एल्केनोन, इसमें कुछ नहीं करना गाइस, ये बहुत सिंपल है, इसमें आपने इसको तो फिनाइल बोलना है। ठीक है, और बाहर जितने भी हैं, बाहर जितने भी हैं, और मैं लंबा ले लेती हूँ, लीजिए आपके लिए लंबा ले लिया, तो 1 2 3 काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेगी, इसको आपने एल्केनोन लिखना है, लेकिन क्योंकि अपन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्केन 1 ओन लिखना है। 1 ओन बेहद ज़रूरी है, राइट। सो अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, इसकी वजह से, और 1 और 2 इथेनॉन। नेक्स्ट लीजिए, आई होप इट्स क्लियर। मैंने थर्ड डेरिवेटिव लिया, 1 2 3 है, तो 3 का एसिड क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, तो क्या बन जाएगा वर्ड प्रोपियो, और इसका तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जहाँ पे भी होगा वर्ड फिनोन लगेगा तो प्रोपियोफिनोन एक नाम हो जाएगा, और एल्केनोन वाला दूसरा नाम देखिए फिनाइल। फिनाइल किसके लिए होगा, रेड कलर को फोकस करिए, ये फिनाइल है, और ये तीनों आपके क्या दे देंगे, ये तीनों आपके दे देंगे प्रोपेन 1 ओन, तो फिनाइल प्रोपेन 1 ओन या प्रोपियोफिनोन। और ये नाम बड़ा सिंपल है, इथाइल फिनाइल कीटोन, अल्किल अल्किल कीटोन, राइट।
आई होप नो डाउट्स, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4, सो बाहर 4 कार्बन है, 4 मीन्स ब्यूट्रिक एसिड है, तो वर्ड आ गया ब्यूट्रो। और गाइस आपको पता है इस सिस्टम को आप फिनोन कहते हो, तो ये वर्ड हो गया, एक तो ब्यूट्रोफिनोन हो गया। वन नेम इज ब्यूट्रोफिनोन एंड द अदर नेम विच वेयर आई सेड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज फिनाइल एल्केनोन। जो आपको फिनाइल एल्केनोन रूल यूज करना है वो वाला नाम अब हम करते हैं। यहाँ पे फिनाइल है, एल्केनोन पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओन, राइट। सो ये ज़्यादा लॉजिकल है, एक्चुअली लॉजिक इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को एसिड के नाम्स नहीं याद होते हैं तो दे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज देयर इज एन एरर। सी देखो बेटा, फिनाइल PH होता है ना, और प्रोपाइल PR है ना, तो H पहले आएगा, दिस इज गोइंग टू बी PH इन फिनाइल प्रोपाइल, सॉरी अबाउट इट, कीटोन, है ना। मैं अल्फ़ाबेट्स में करती हूँ, गड़बड़ करती हूँ बच्चे। तो ये हो गया आपका फिनाइल, और ये हो गया प्रोपाइल, और ये हो गया कीटोन। हमेशा ध्यान रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालना आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें एक ही नाम है, ये तो फिनोन है, बल्ले बल्ले। और ये क्या है बेटा, ये है, ये हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, फिनोन तो आपको पता है, और जो बाहर है, देखिए ये तो फिनोन लिया आपने, ये पार्ट फिनोन हो गया, और जो बाहर एसिड, जो बाहर कार्बन जितने भी हैं एक बेंजीन रिंग के, उसका कौन सा एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन, ठीक है। ये नाम है डाईफिनाइल कीटोन। और एक और नाम पॉसिबल है जो मैंने वो जो एल्केनोन का किया था, वो हो जाएगा गाइस दिस इज ऑटो करेक्ट, माई सिंसियर अपॉलॉजीज। सो डाईफिनाइल मीथेनोन, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीथेनोन। तो इसमें इन दोनों को अलग कर दिया। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या किया गाइस, मैंने इसको भी अलग ले लिया, इसको भी अलग ले लिया, और ये एल्केनोन में ले लिया, तो डाईफिनाइल मीथेनोन इसका बिल्कुल सही नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको मैं जस्ट बता दूं कि जैसे बड़े इंपॉर्टेंट एल्किल ग्रुप्स होते हैं, 3 कार्बन के आइसोप्रोपाइल, 4 कार्बन में आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, एलाइल, बेंजाइल, इस तरह के बहुत सारे एल्किल ग्रुप्स हैं। अब सारे एल्किल ग्रुप्स अगर मैं एक ही वीडियो में डालूंगी, वीडियो बहुत ही मोनोटनस और लंबी हो जाएगी। तो ये वाले जितने भी एल्किल ग्रुप हैं, इनकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई हुई है हैलाइड वाले वीडियो में, आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और उसका लिंक आपको दिख रहा होगा आई बटन में, बट बहुत ज़्यादा आप इस वीडियो को छोड़ के वो वीडियो नहीं देखें, पहले आप इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा। मैं एंड पे भी, जो एंड स्क्रीन पे भी हाईलाइट का वीडियो लगा दूंगी, तो आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने कैसे चूज़ किए, मैं आई बी वेरी अपफ्रंट विद यू। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल चूज़ किए हैं जिनका या तो कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, या उनका IUPAC इंपॉर्टेंट है कुछ, और जहाँ जहाँ कॉमन नेम रेलेवेंट है बेटा, वहाँ मैंने लिखे हैं। जहाँ बहुत ही ट्रिकी हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, तो वहाँ कॉमन नेम मैंने नहीं लिखे हैं, है ना। अच्छा अब हो गया सिंपल सा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो प्रॉप हो जाएगा। और 2 पे ईन है, 1 पे अल है, यहाँ एक हाइफन मिसिंग है, एक 1 के बाद हाइफन होगा, राइट। इसको, इसमें कुछ इस नाम में चैलेंज नहीं है, लेकिन चैलेंज है, इसको एक्रोलीन कहते हैं, इसको एक्रोलीन कहते हैं, ठीक है। ये जो ये है, जब बेंजीन के 1-2 पोजीशन पे एल्डिहाइड होता है तो उसको थैलेल्डिहाइड कहते हैं। ये डराइव्ड है थैलिक एसिड से, ये डराइव है थैलिक एसिड से, ठीक है। थैलिक एसिड होता है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, ठीक है जी। और ये इसे कहते हो आप मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड में क्या होता है, 3 पे ईन होता है, 2 पे ऑन होता है, 5 कार्बन की चेन होती है। ये देखिए 5 कार्बन की चेन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है। और इसमें 4 पे मिथाइल एज अ लोकेंट जाएगा, और 3 पे ईन और 2 पे ओन होता है, राइट। इसको आप कहते हो मेसिटिल ऑक्साइड, ठीक है। ओके जी, ओके नेक्स्ट आ जाइए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें मैंने कर दिया आपको, अगर आपको ये बॉन्ड लाइन, आई होप आपको बॉन्ड लाइन क्लियर होगा, कुछ नहीं है बॉन्ड लाइन में गाइस। देखिए यहाँ पर CHO लगाया हुआ है, और यहाँ पर कीटोन लगाया हुआ है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मेन ग्रुप मान लेंगे और इसको हम इसका प्रीफिक्स नाम लगा देंगे, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका कीटोन का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है ऑक्सो। मेरे फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ी बात की हुई है। तो ये होता है ऑक्सो। तो 4 पे ये कौन सा कार्बन हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। फॉर गॉड सेक बेटा रेड वाली काउंटिंग मत करना, 1 2 नॉट एट ऑल, ये अलग जाएगा बच्चे, हम ये रिंग की काउंटिंग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे तो कार्बल्डिहाइड है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, और चौथी पोजीशन पे ऑक्सो है। और आपको बता दें बहुत जगह वर्ड कीटो को यूज़ करा जाता है, कीटो पेंटोइक एसिड, 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड, इस तरह के यूज़ करते हैं। कीटो आईयूपैक में नहीं है बेटा, आईयूपैक की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है 2013 में, कीटो इज़ नॉट एज अ प्रीफिक्स नेम, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड है, इसे कहते हो सिनेमल्डिहाइड, इसे आप कहते हो सिनेमल्डिहाइड। ये इसमें क्या होता है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड है, प्रोप 2 in 1 अल, 3 कार्बन का, लेकिन थर्ड पोजीशन पे एक फिनाइल भी लगा हुआ है, इसको आप कहते हो सिनेमल्डिहाइड। इसका डेरिवेटिव सिनेमिक एसिड भी एसिड डेरिवेटिव में भी पाया जाता है, राइट। इसमें आ जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने अल्डिहाइड को एज अ साइड चेन लिया है। जिन बच्चों को बहुत कंफर्टेबल नहीं है जो इसमें अपने बॉन्ड लाइन में, तो उनके लिए मैं फिर से भी बना देती हूँ, नॉट एन इश्यू। और इसको मैं डेलिबरेटली थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहूँगी, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अल्डिहाइड है ना बच्चे, ये मेन चेन में नहीं ले सकते, लेकिन हम इस कार्बन को मेन चेन में ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। इस कार्बन को हमने मेन चेन में ले दिया, तो ये 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। और फोर्थ पे जो लगा हुआ है उसको हम ऑक्सो लेंगे। आपको मैं यहाँ पर भी बता दूँ, CHO के 2 प्रीफिक्स नेम होते हैं, ऑक्सो और फॉर्मिल, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाली जा चुकी है, आई बटन में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सो तब होता है जब ऑक्सो का जो CHO का कार्बन आप मेन चेन में लेते हो, और फॉर्मिल तब होता है जब उसका कार्बन नहीं ले पाते हो। जब भी टर्मिनल पे होगा CHO, जब भी कोने में होगा, ऑक्सो कहलाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल इसी का मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 पे आ गए हैं हम। इसमें मैंने क्या किया गाइस, मैं थोड़ा स्केलेटन ही बना लेती हूँ। मैंने बेटा ये स्केलेटन लिया, ठीक है, और इसमें मैंने 3 पे CHO लिया, बस इसका ये स्केलेटन है, ठीक है। तो अब आपने गाइस, आप इसको 4 नहीं कर सकते हो, नो, आपने इसमें जाना है, आपकी ये पेंटेनोइक एसिड हो गई। अब कम वॉट में आपका ये जो है ना CHO, इसका जो कार्बन है मेन चेन का हिस्सा नहीं बन सकता, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल। आवाज़ भी आ रही है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि कार्बन इसके साथ ही है, तो 3 फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है ये मैंने आपको दिया ग्लायोक्सिल। ग्लायोक्सिल बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और ये इथेन 1,2 डायल अल का कॉमन नेम है ग्लायोक्सिल, ठीक है। और एक मैंने आपको दिया है, एक कार्बन के आसपास अगर तीनों तरफ या चारों तरफ या दोनों तरफ अल्डिहाइड है, तो आप 2 तरफ होंगे तो आप डायल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऊपर ही आपको दिखाया, 2 तरफ है तो डायल। अब ये 3 तरफ है तो ट्रायल नहीं हो सकता है, नॉट एट ऑल। अगर आप इसको लिखो प्रोपेन ट्रायल, नॉट एट ऑल। प्रोपेन ट्रायल कैसे हो जाएगा, ये तो डायल ही है ना, इसको दे तो बाहर जा रहा है। तो इसके लिए आप नाम दे सकते हो, इसको मीथेन मान लिया, एल्केन ट्राइकार्बल्डिहाइड। अगर बहुत सारे एल्डिहाइड होते हैं तो आप इसका नाम यूज़ कर लेते हो अल्केन ट्राइकार्बल्डिहाइड। ऑल्दो ये रिकमेंडेड आईयूपैक नहीं है, बट आजकल बड़ा लिबरली यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको करेंगे एल्केन की जगह आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है, ट्राइकार्बल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि जब सारे हाइड्रोजन किसी हैलोजन से लगते हैं तो नाम हो जाता है पर, तो ये हो जाएगा पर क्लोरो एसीटोन। और आईयूपैक होगा 1,1,1, 3, एक को 1 ले लो, एक को 3 ले लो, 3,3,3 हेक्साक्लोरोप्रोपेनोन एंड पर क्लोरोएसीटोन। पर वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स आर एग्जॉस्टेड
by, they are consumed by, taken by halide. So guys, that was all about carbonyls. I know the video was longer than anticipated. Actually आपने देखा होगा ना कितने सारे variations हैं और आपको ये भी पता चल गया है कि एसिड के कॉमन नेम की क्या रेलेवेंस है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है एसिड की वो आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, ठीक है। और जो कीटोन्स होते हैं उनमें एरोमेटिक और एलिफेटिक का जो कॉम्बिनेशन है किस क्या रेलेवेंस है बेंजो वर्ड की, फिनोन वर्ड की, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा। और एक बार वो ध्यान में रहेगी तो आपको कीटोन्स का भी कॉमन नेम काफ़ी इजी लगेगा। देखिए वी कांट गेट रिड ऑफ कॉमन नेम्स। आपको पता है जो हिस्टोरिकल नाम है वो IUPAC से भी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो IUPAC से पहले निकाले गए थे। तो वी कैन नॉट डिनाई देयर इम्पोर्टेंस। तो आई होप क्लास आपको मीनिंगफुल लगी हो। और ऐसा कभी नहीं होता कि स्टूडेंट्स को ही मोटिवेशन चाहिए होता है। गाइस, इवन द टीचर्स दे नीड मोटिवेशन, ओल्ड पीपल नीड मोटिवेशन, यंग पीपल नीड मोटिवेशन। सो फॉर गॉड सेक प्लीज़ यू मस्ट लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव एंजॉयड द क्लास और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको क्लास अटेंड करके मज़ा आया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ carboxylic acid. Don't forget to revise the common names of carbonyls. So till the next class, see you in the next video. God bless.